میری ان حکمرانوں سے ایک سوال ہے، کیا ان کے بچے، ان کے بھائی جو بھی پولیٹکس کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی اس قابل ہے کہ وہ پولیٹکس کو جانتا ہو؟ کیا مریم نواز صاحبہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو پولیٹکس کی پی کا بھی پتہ ہے کہ پولیٹکس ہوتی کیا ہے، ملک کو چلانا کیسے ہے؟ آپ کے بچے، آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کے چاچے سارے ہمارے ملک پہ مسلط ہوئے بیٹھے ہیں، کسی ایک کی بھی پولیٹکس کی ڈگری ہے؟ نہیں نا۔ تو جو لوگ پولیٹکس پڑھ رہے ہیں، جو لوگ پولیٹکس جانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں آنے دیتے آپ لوگ؟ نئے لوگوں کو کیوں نہیں حکومت میں آنے دیتے؟ نئے لوگوں کو آنے دیں نا، جین زی کو آنے دیں۔ اب آپ لوگ پھٹیچر ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ جائیں یہاں سے، دفع ہو ہمارے ملک سے، اب نئے لوگوں کو آنے دیں۔ کہ ساری زندگی تم لوگوں نے ہی ہمارے ملک کو چلانا ہے؟ کیا کوئی نیا لوگ نہیں آئیں گے؟ خدا کا واسطہ دفع ہو جاؤ، اب بہت کھا لیا تم لوگوں نے۔ اب کوئی نئی پارٹی آنے دو، کوئی نئی ینگ جنریشن کے لوگوں کو آنے دو، کیونکہ اب نئے لوگ ہیں، نئی سوچ ہے، نئی دنیا ہے، 21ویں صدی کا دور ہے، 2026 چل رہا ہے۔ اب آپ لوگوں کی گھسی پٹی سوچیں نہیں چلیں گی۔ نئے لوگوں کو آنے دو، جین زی کو آنے دو، حکومت کرنے دو، نئی پارٹیز کو آنے دو، آپ لوگ دفع ہو جاؤ، نئے لوگوں کو متعارف کرواؤ جو پولیٹکس کو جانتے ہوں، جو ملک کو سنبھالنا جانتے ہوں، جو اکاؤنٹس، فائنانس، ملک کی ہر چیز کو جانتے ہوں۔ آپ تو ملک ڈیفالٹ کرنے لگے ہو، کچھ ہوتا نہیں ہوتا بجلی مہنگی کر دیتے ہو، کچھ ہوتا نہیں ہوتا پیٹرول مہنگا کر دیتے ہو۔ آپ کی آسائشیں پوری چل رہی ہیں، رگڑی جا رہی ہے تو عوام رگڑی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے دفع ہو جائیں، اب بہت کر لیا آپ نے، بہت لوٹ مچا لی ہے، جتنا لوٹ لیا ہم نے آپ کو معاف کیا، سمیٹے اور دفع ہو جائیں، اپنی شکلیں گم کریں یہاں سے، اب کسی اور کو آنے دیں۔ پچھلے 75 سالوں سے، یا چلو 70 سالوں سے، چلو چھوڑو، میکسیمم 50 سالوں سے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی نئی پارٹی حکومت میں نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ پیپلز پارٹی جاتی ہے، نون لیگ آ جاتی ہے، نون لیگ جاتی ہے، پیپل پارٹی آ جاتی ہے۔ پچھلے 50 سالوں سے یہ دو پارٹیاں پورے ملک کو کھا گئی ہیں لوٹ کے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی نئی پارٹی آئی ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جین زی میں سے کوئی نیا ینگ جنریشن نے اپنی پارٹی بنائی ہو، کوئی ینگ پارٹی بنی ہو جو آ کے الیکشن میں جیتی ہو، آزادانہ ووٹوں سے جیتی ہو، الیکشن جیت کے، ٹھیک ہے، آزاد امیدوار بن کے جیتی ہو اور پھر آئی ہو ملک میں؟ نہیں نا۔ کیوں؟ ادھر سے سوچو کہ کیوں کوئی نئی پارٹی نہیں آتی۔ یہ دو پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنا حکومت بنا لیتی ہیں، باری باری آتی ہیں، 1 سال وہ، 5 سال وہ کر لیتا ہے، پھر 5 سال وہ کر لیتا ہے، پھر 5 سال وہ کر لیتا ہے، پھر ان کے علاوہ کوئی ایسی پارٹی آج تک حکومت میں نہیں آئی۔ صرف یہی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے وہ حکومت میں آ جاتا ہے، نئی پارٹی کو وہ آنے نہیں دیتے۔ جیسے عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان ان کی سنتا نہیں تھا، عمران خان ان کی بات مانتا نہیں تھا، وہ ان کو سلوٹ مرواتا تھا، اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اسی لیے کسی نئے پارٹی کو، جین زی کو، کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ اپنے حق کے لیے نکلو، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نکلو۔ یہ جو نسل در نسل موروثی حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے نا، آج یہ پہلے ان کے باپ کرتے تھے، پھر ان کے بھائی آ گئے، پھر ان کے باپ آ گئے، ان کی ماں آ گئی، ان کی بہن آ گئی، چاچے آ گئے، پرچاچے آ گئے، اب ان کے بچے آئیں گے، ہم پہ حکومت کریں گے۔ نہیں، ہم کوئی غلام ہیں کہ تم جو کہو ہم مان لیں؟ اپنی نسلوں کے لیے نکلو۔ پہلے یقین مانے 14 اگست منانے کو بھی دل کرتا تھا، اب 14 اگست منانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ہم 78 سالوں سے یہی سوچ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم انڈیپینڈنس ڈے مناتے تھے، اپنی پاکٹ منی سے جھنڈیاں خریدتے تھے، گھر کو سجاتے تھے، بٹ ہمیں پتہ نہیں تھا پچھلے 78 سالوں سے ہمارے ملک کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں تھے۔ امریکہ جاتے جاتے اپنی ناجائز اولاد پاکستان میں چھوڑ کر گیا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، تم نے پاکستان پہ اپنا فل کنٹرول رکھنا ہے، اور وہ ناجائز اولاد آج پورے پاکستان پر قابض ہوئی بیٹھی ہے، پورے پاکستان میں اس کا ٹیکہ ہے، پورے پاکستان میں وہ جو بھی اس کے خلاف بولتا ہے اس کو سیدھے فائر مارتا ہے۔ وہ سب سے پہلے پاکستان کو ایسی ناجائز جو ہے نا ریاست سے آزاد کروانا پڑے گا اگر چاہتے ہو سکون اور مہنگائی کم ہو۔ ہم سوچتے تھے کہ ہم الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں اور ہمارے ووٹ کی بڑی عزت ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ہمارے ووٹ کی ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے۔ ہم دن کو ووٹ ڈال کے آتے ہیں، رات کو یہ ڈکیت جاتے ہیں، اپنا ووٹ چینج کر دیتے ہیں، یہ اپنی مرضی کے بٹھاتے ہیں۔ ایک چیز نوٹ کی ہے، پچھلے 75 سالوں سے یا 50 سالوں سے دو ہی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، یا پی 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 آ جاتی ہے یا نون لیگ آ جاتی ہے، یا پی 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 آ جاتی ہے یا نون لیگ آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی نئی پارٹی آئی ہے؟ ایک آئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، سوری پاکستان تحریک انصاف، تو اس کو بھی انہوں نے آڑے لگا دیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی انہوں نے ٹانے لگا دیا، صرف 3 سال حکومت کی انہوں نے مرمرا کے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے وعدوں پہ، ان کے ارادوں پہ پورا اترتا ہے، اسی کو یہ کرسی دیتے ہیں، اسی کو بٹھاتے ہیں۔ یہ تو پچھلے 78 سالوں سے چل رہا ہے۔ ہمارے ووٹ کی تو عزت پچھلے 78 سالوں سے نہیں ہے، ہم تو آج بھی آزاد نہیں ہیں۔ کس نے کہا ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔
पहले यकीन माने 14 अगस्त मनाने को भी दिल करता था, अब 14 अगस्त मनाने को भी दिल नहीं करता था। हम 78 सालों से यही सोच रहे थे कि हम आज़ाद हैं और हम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, अपनी पॉकेट मनी से झंडियाँ खरीदते थे, घर को सजाते थे। बट हमें पता नहीं था पिछले 78 सालों से हमारे मुल्क को कौन कंट्रोल कर रहा है। हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं थे। अमेरिका जाते जाते अपनी नाजायज़ औलाद पाकिस्तान में छोड़ कर गया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुमने पाकिस्तान पर अपना फुल कंट्रोल रखना है। और वो नाजायज़ औलाद आज पूरे पाकिस्तान पर काबिज़ हुई बैठी है, पूरे पाकिस्तान में उसका टेका है, पूरे पाकिस्तान में वो जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको सीधे फायर मारता है। वो सबसे पहले पाकिस्तान को ऐसी नाजायज़ जो है ना रास्ते से आज़ाद करवाना पड़ेगा अगर चाहते हो सुकून और महंगाई कम हो। हम सोचते थे कि हम इलेक्शन में वोट डालते हैं और हमारे वोट की बड़ी इज़्ज़त है, हमारे वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारे वोट की टके की भी इज़्ज़त नहीं है। हम दिन को वोट डाल के आते हैं, रात को ये डकैत जाते हैं, अपना वोट चेंज कर देते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के बिठाते हैं। एक चीज़ नोट की है, पिछले 75 सालों से या 50 सालों से दो ही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, या पीपीपी आ जाती है या नून लीग आ जाती है, या पीपीपी आ जाती है या नून लीग आ जाती है। कभी कोई नई पार्टी आई है, एक आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसको भी इन्होंने आड़े लगा दिया, ठीक है, उसको भी इन्होंने टाणे लगा दिया। सिर्फ 3 साल हुकूमत की उन्होंने मरमरा के, ठीक है। सिर्फ ये जो इस्टेब्लिशमेंट के वादों पे, उनके इरादों पे पूरा उतरता है, उसी को ये कुर्सी देते हैं, उसी को बिठाते हैं। ये तो पिछले 78 सालों से चल रहा है। हमारे वोट की तो इज़्ज़त पिछले 78 सालों से नहीं है। हम तो आज भी आज़ाद नहीं है। किसने कहा हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं। पहले यकीन माने 14 अगस्त मनाने को भी दिल करता था, अब 14 अगस्त मनाने को भी दिल नहीं करता था। हम 78 सालों से यही सोच रहे थे कि हम आज़ाद हैं और हम इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, अपनी पॉकेट मनी से झंडियाँ खरीदते थे, घर को सजाते थे। बट हमें पता नहीं था पिछले 78 सालों से हमारे मुल्क को कौन कंट्रोल कर रहा है। हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं थे। अमेरिका जाते जाते अपनी नाजायज़ औलाद पाकिस्तान में छोड़ कर गया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुमने पाकिस्तान पर अपना फुल कंट्रोल रखना है। और वो नाजायज़ औलाद आज पूरे पाकिस्तान पर काबिज़ हुई बैठी है, पूरे पाकिस्तान में उसका टेका है, पूरे पाकिस्तान में वो जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसको सीधे फायर मारता है। वो सबसे पहले पाकिस्तान को ऐसी नाजायज़ जो है ना रास्ते से आज़ाद करवाना पड़ेगा अगर चाहते हो सुकून और महंगाई कम हो। हम सोचते थे कि हम इलेक्शन में वोट डालते हैं और हमारे वोट की बड़ी इज़्ज़त है, हमारे वोट की कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारे वोट की टके की भी इज़्ज़त नहीं है। हम दिन को वोट डाल के आते हैं, रात को ये डकैत जाते हैं, अपना वोट चेंज कर देते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के बिठाते हैं। एक चीज़ नोट की है, पिछले 75 सालों से या 50 सालों से दो ही पार्टियां हुकूमत कर रही हैं, या पीपीपी आ जाती है या नून लीग आ जाती है, या पीपीपी आ जाती है या नून लीग आ जाती है। कभी कोई नई पार्टी आई है, एक आई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसको भी इन्होंने आड़े लगा दिया, ठीक है, उसको भी इन्होंने टाणे लगा दिया। सिर्फ 3 साल हुकूमत की उन्होंने मरमरा के, ठीक है। सिर्फ ये जो इस्टेब्लिशमेंट के वादों पे, उनके इरादों पे पूरा उतरता है, उसी को ये कुर्सी देते हैं, उसी को बिठाते हैं। ये तो पिछले 78 सालों से चल रहा है। हमारे वोट की तो इज़्ज़त पिछले 78 सालों से नहीं है। हम तो आज भी आज़ाद नहीं है। किसने कहा हम आज़ाद हैं? हम आज़ाद नहीं। हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दी है। पाकिस्तान का इमेज दिन ब दिन पूरी दुनिया में बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट करता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है। पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश महंगी, पाकिस्तान में बिजली महंगी, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, पाकिस्तान में हालात बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं और हुक्मरानों की अय्याशियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन बेशर्मों को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी आवाम भूखी मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास खाने को कुछ है, किसी के पास रोज़गार है नहीं है। इनसे जब इनके असासों के बारे में पूछा जाता है तो ढटाई और बेशर्मी से कहते हैं हाँ ख़रीदा है। धुर फिटे मुँह, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये बात करते? तुम्हारे बाप की जगह आती तुमने ख़रीदा है, अवाम का जूस निकाल के तुम लोगों ने ख़रीदा है ये सब कुछ, ठीक है। इस टाइम जो मकबूजा कश्मीर है ना, वो खुश होते होंगे, वो कहते होंगे शुक्र है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, आज वो आज़ाद है। और आज़ाद कश्मीर आज मकबूजा कश्मीर बन चुका है बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। कब तक चलेगा? जुल्म रहे और अमन भी हो, हाँ, जुल्म रहे और अमन भी हो, ऐसा मुमकिन है? कभी भी नहीं। हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटवा के रख दी है। पाकिस्तान का इमेज दिन ब दिन पूरी दुनिया में बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। पाकिस्तान डिफॉल्ट करता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है। पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश महंगी, पाकिस्तान में बिजली महंगी, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, पाकिस्तान में हालात बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं और हुक्मरानों की अय्याशियाँ बढ़ती जा रही हैं। इन बेशर्मों को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी आवाम भूखी मरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के पास खाने को कुछ है, किसी के पास रोज़गार है नहीं है। इनसे जब इनके असासों के बारे में पूछा जाता है तो ढटाई और बेशर्मी से कहते हैं हाँ ख़रीदा है।
धुर फिटे मुंह, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये बात करते? तुम्हारे बाप की जायदाद थी, तुमने खरीदा है, अवाम का जूस निकाल के तुम लोगों ने खरीदा है ये सब कुछ, ठीक है। इस टाइम जो मकबूजा कश्मीर है ना, वो खुश होते होंगे, वो कहते होंगे शुक्र है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, आज वो आज़ाद है, और आज़ाद कश्मीर आज मकबूजा कश्मीर बन चुका है बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के, कब तक चलेगा? जुल्म रहे और अमन भी हो, हाँ, जुल्म रहे और अमन भी हो, ऐसा मुमकिन है? कभी भी नहीं। अच्छा जी, हुकूमती बयानिया है कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो दहशतगर्द है, इंडिया की एजेंट है, राह की एजेंट है। मैं बिज़नेस करती हूँ, मेरे पास कश्मीर से, मीरपुर ख़ास से, इधर से मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं मेरे पास ना, तो अक्सर वो ना मुझे पोस्टें शेयर कर रहे होते हैं, स्टेटस पे भी लगा रहे होते हैं, तो मैंने उनसे कुछ अपडेट्स मैंने अपने पेज पे भी लगाई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सीधे फायर मारे गए हैं, अवाम को कत्ल किए जा रहे हैं, डायरेक्ट मतलब फायर करके जो भी एहतजाज करे उनको कत्ल कर उनको मार के गाड़ियों में उनकी लाशें डाल के गायब की जा रही हैं। तो मतलब वो तो अब देखें ना, वो तो इस तरह की नहीं है ना दहशतगर्द या इस तरह की तंजीम, तो वो तो खुद बेचारी काम करती है, ठीक है। तो वहाँ से जो मेरे पास लोग कांटेक्ट में ऐड हैं वो बता रहे हैं कि मीरपुर के हालात बड़े ख़राब हैं, लोगों को मारा जा रहा है, मर्डर करके उनको फेंका जा रहा है, लाशों को इतनी बुरी तरीके से कंटेनरों में, वो बख्तर बंद गाड़ियाँ, उनमें लाशें फेंक के, तो वो जो है ना उनको बीच में डाल के लाशें गायब कर रहे हैं। तो सारे ही गद्दार हैं इनकी नज़र में, तो कोई भी बोलता है वो गद्दार हो जाता है, सारे ही गद्दार हैं। दुनिया के सब ममालिक में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक़ सबको होता है, दुनिया के सब ममालिक में एहतजाज का हक़ सबको होता है, बोलने का हक़ सबको होता है, अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक़ सबको होता है। बट इन पाकिस्तान तुम बोल के देखो, तुम गद्दार कहला दिए जाओगे। बलोच क्यों गद्दार कहला दी? क्योंकि वो अपने हक़ के लिए बोलते हैं। कश्मीरी गद्दार क्यों कहला दी? क्योंकि वो ढटाई से अपने हक़ के लिए खड़े हैं, वो अपने नुमाइंदे को खुद मुंतखब करना चाहते हैं, जबकि कुछ जो अनासिर हैं वो नहीं चाहते कि वहाँ अमन और वहाँ वो अपने नुमाइंदे बिठाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बाकी देखिए, इंडिया में देख लें, अब जैन ने एहतजाज किया, किस तरीके से उन्होंने जो है ना हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। यहाँ तुम लोग निकालो जलसा, निकालो, एहतजाज करो। मैं कहती हूँ तुम बस सीधे फायर ना मारे जाएँ तो फिर कहना, फिर कहेंगे ये तो गद्दार थे, ये तो इंडियन एजेंट थे, तुम पे तोहमत का तमगा लगाया जाएगा, तुम पे गद्दारी का तमगा लगा दिया जाएगा। ये हालात हैं इन पाकिस्तान, जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। दुनिया के सब ममालिक में फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक़ सबको होता है, दुनिया के सब ममालिक में एहतजाज का हक़ सबको होता है, बोलने का हक़ सबको होता है, अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक़ सबको होता है। बट इन पाकिस्तान तुम बोल के देखो, तुम गद्दार कहला दिए जाओगे। बलोच क्यों गद्दार कहला दी? क्योंकि वो अपने हक़ के लिए बोलते हैं। कश्मीरी गद्दार क्यों कहला दी? क्योंकि वो ढटाई से अपने हक़ के लिए खड़े हैं, वो अपने नुमाइंदे को खुद मुंतखब करना चाहते हैं, जबकि कुछ जो अनासिर हैं वो नहीं चाहते कि वहाँ अमन और वहाँ वो अपने नुमाइंदे बिठाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बाकी देखिए, इंडिया में देख लें, अब जैन ने एहतजाज किया, किस तरीके से उन्होंने जो है ना हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। यहाँ तुम लोग निकालो जलसा, निकालो, एहतजाज करो। मैं कहती हूँ तुम बस सीधे फायर ना मारे जाएँ तो फिर कहना, फिर कहेंगे ये तो गद्दार थे, ये तो इंडियन एजेंट थे, तुम पे तोहमत का तमगा लगाया जाएगा, तुम पे गद्दारी का तमगा लगा दिया जाएगा। ये हालात हैं इन पाकिस्तान, जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने।